your fourth lecture of current electricity. Fourth lecture of current electricity. Current electricity. Fourth lecture of current electricity, and the topic is drift velocity. Drift velocity and origin of resistance. Origin of resistance. This is our topic. So resistance आता है कहाँ से आता है? तो पहले study drift velocity and then we will study the cause of resistance. Clear? So drift velocity. Drift velocity. So you know there are large number of free electrons in an metal or in an conductor. So there screen को कर दिया ना तूने. There are large number of electrons, free electrons in an atom. There are large number of free electrons in an atom, and free means they are free to move anywhere inside the material. Clear? Inside the material means they have random motion. They have random motion means electrons are free in the metal or conductor. Sorry, free atom in a conductor ना यार, conductor होगा ना. And they are in random motion means they have different velocity, and also the direction velocity is different, means they have different velocity, means different magnitude plus different direction. Means this is a conductor. So this one is large number of free electrons. So there is electrons over here. There is electron over here. There is over here. There is electron over here. There are large number of electrons, and these electrons are free, and they can move anywhere inside the bulk. They will not escape from the bulk. They can only move inside the bulk. And यहाँ वाला electron यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी यहाँ वाला यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी कहीं भी जा सकता है. So they are free to move inside the bulk, and their motion is random. Means they have different velocity and different direction. If this electron is moving in this direction, this one 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 is in this direction, this one is in this direction, and this one is in this direction. So they have different magnitude and they have different direction. This is only when if there is no any electric field. जब E 0 है, means there is no any potential difference. There is no any potential difference across the end of the conductor. So this is the scenario when there is no any battery applied across the end of the conductor. कोई बैटरी नहीं अप्लाई किया, means conductor have large number of electrons है कि नहीं, and they are free, so they can move anywhere, and their motion is random, means they have different magnitude and different direction. So you know definition of current. Your current is nothing but the flow of charge. Your current is nothing but flow of charge, na? Flow of charge means if there is a charge and the charge is in motion, there is some current. If there is a charge and charge is in motion, there is some current. So you are considering a conductor, and you are saying that there are large number of electrons in the conductor and they are free, means they are moving. They have different direction and different velocity, but they are moving now. So these electrons are charged particles and they are moving, means there must be some current due to motion of electron. No, there must be some current due to motion of electron. So they have different velocity, means they have different magnitude and different direction. Clear? Direction है, magnitude भी अलग अलग है.
but they are in motion. They are in motion. They are in motion. Clear? They are in motion. So motion of charged particle is the current ना, means इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन है तो भी तो करंट होंगे ना, करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमको करंट मिलता है क्या? इफ दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मूविंग, तो हमको टच करने के बाद करंट मिलता है क्या? कुछ शॉक करता है क्या? या बल्ब लगा दो खाली कंडक्टर तो जलेगा क्या? जलेगा क्या? नहीं. व्हाई दिस इज सो? व्हाई दिस इज सो? देयर इज नो एनी करंट. लेकिन तुमको तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं कि सिंस कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल, तो दे आर मूविंग, तो देयर मस्ट बी सम करंट ना. लेकिन हमको तो कोई करंट नहीं मिलता यार. मान लो कि कंडक्टर है, इससे एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब को ग्लो होना चाहिए ना. देयर इज करंट, मींस नेट देयर इज नो एनी करंट. इलेक्ट्रॉन्स आर मोशन बट देयर इज नो एनी करंट इन द conductor, or there is no any current flowing through the conductor. This is why your definition is current is flow of charge and electrons are charged particles and they are moving inside the conductor. Still there is no current. Why? Random. Because they have random direction. They have random direction. They are neutralizing their effect. कैसे होगा ये लिखो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि को वाई वाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन बट नेट करंट इज 0. वाई विल एक्सप्लेन. पहले इसको लिखो, जल्दी लिखो. तो विल एक्सप्लेन दिस वाई नेट करंट इज 0. So let us consider this is a conductor. And now consider 3 or 4 electrons. There is electrons over here, and there is electrons over here, there is electrons over here, there is electrons over there. Consider 6 or 8. So let us say this is moving in this direction, 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 and this is moving in this direction. One is moving in this direction, another is moving in this direction, and this is moving random direction, random direction. And random velocity. And you know direction of current. Direction of current is opposite to motion of electrons na. Is also this. So these are the electrons. These are the electrons. These are the electrons. And they are the velocity. V1. V मान लो ये मान लो कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इसका ये V4 है, ये बाबू V5 है, ये V6 है, ये V7 इधर रख के. So far अब ये क्या है? वेलोसिटी इधर होगा तो करंट किधर होगा? इसका मान लो कि इधर करंट I1 हो जाएगा अपोजिट. इसका वेलोसिटी इधर तो करंट किधर होगा? इधर हो जाएगा I2. इधर वेलोसिटी इधर कितना होगा? I3. इधर वेलोसिटी इधर क्या होगा? I5 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? इधर अगर वेलोसिटी इधर कितना होगा? I6. इधर कितना होगा? अगर I7 इधर तो I7 किधर होगा? इधर. इसका मतलब क्या होगा? कि due to random velocity of electron, direction of current is also random na. Due to random velocity of electron, direction of current is also random. Due to random velocity of electron, direction of current is also random. Means total current I must equal to I1 plus I2 plus I3 plus dot In if there are n number of electrons. तो अब क्या होगा? मान लो I1 का डायरेक्शन अब इधर है
और I2 पे क्या है, इधर है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा इनका, जीरो है। एंड ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रैंडम है, कोई करंट इधर 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 है, कोई करंट इधर, तो नेट इफेक्ट क्या होगा उनका, जीरो। कोई करंट प्लस में, कोई माइनस में, यानी इधर प्लस है तो इधर को माइनस, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, तो टोटल I गोज टू जीरो। Electrons have current and there is a current in the conductor, but net current is zero, net effect is zero. Is that okay? You can also prove with the help of velocity. Let us know V I is the velocity of ith electron. Means V1 is the velocity of first electron, V2 is the velocity of vector sign लगाओ, and V2 is the velocity of second electron, and V3 is the velocity of third electrons ना, third electron. Similarly, I is the VI is the velocity of ith electron. V average velocity of electron will equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n। इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन Vi अपॉन n, where I runs from 1 to n ना। And since all different electrons have different magnitude and different direction, average of the velocity will be what, zero ना। एवरेज वेलोसिटी सब तक हमारा वेलोसिटी इधर है, एक इधर, उनका इफेक्ट क्या होगा, जीरो। एक वेलोसिटी उधर है, इधर है, नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। मींस एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। मींस ए सिंगल इलेक्ट्रॉन is in motion, but if you are taking all electrons together, then they are found to be at rest. Average velocity of electron is found to be at rest. Are you listening? Electrons are moving, but if you are taking average of the all velocities of electron, they are found to be zero. They are found to be at rest. यानी एवरेज की बात करें तो ऑन एवरेज इलेक्ट्रॉन क्या बाबू, रेस्ट पे, तो करंट क्या हो जाएगा, एवरेज जीरो हो जाएगा। यहाँ भी हमने वही किया, एवरेज करंट क्या लिया था, जीरो लिया था। अपॉन एन करोगे ना यार, यहाँ भी क्लियर, अपॉन एन करोगे, यहाँ अपॉन एन नहीं, यहाँ अपॉन एन, यहाँ तो उनका डायरेक्शन कैंसिल कर जाएगा। यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जीरो आ। आई बात समझ क्लियर, अगर क्लियर हो तो हम कॉप करो। दैट्स व्हाई इफ देयर इज अ कंडक्टर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, दे आर मूविंग एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द करंट, बट ऑन एवरेज there is no any current inside the conductor or through the conductor, and on average electrons are found to be at rest. clear? हम कॉप करो, अगर समझ आया तो जल्दी क्लियर। देखो क्लियर, ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मोशन में करेगा, एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, हम तुमको लगेगा कि क्या रेस्ट पे, करंट नहीं है तो क्या चार्ज पार्टिकल का रेस्ट पे ही है ना, तो एवरेज उनका क्या होगा, रेस्ट पे ही है ना। क्लियर, तो ये है, तो लिखो इसको, फिर आगे बताता हूं। क्लियर, क्लियर बाबू, लिख लिया, ठीक है। सो also this is your conductor, and this is your conductor, and there are electrons, and there are electrons. Also there are atoms, now there are atoms, so electrons are free to move inside the bulk, and they are moving। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन collide with this atom ना, also this electron will collide with this atom। मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वो इधर आएगा, तो this electron will collide with this atom। Means there is a collision between electrons and the atoms ना, electrons and there is a collision between the free electrons and the atom। There is a collision between free electrons and एटम, और आयंस भी बोल सकते हो, एटम और आयंस। क्योंकि मान लो कि एक एटम है, ये ऐसा सिनारियो लो, एटम से कुछ भी हो सकता है, कीप दिस इन माइंड। मान लो कि यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया ना बाबू, आयन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ से कोलाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड किया, लेकिन अब ये लूज कर दिया, तो यहाँ बन गया आयन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से कोलाइड किया, तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, आयन है, और इसके लिए ये क्या है, एटम है। मींस योर फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेगुलरली कोलाइडिंग विद atoms and ions, keep this in mind। so there is a collision between electrons and atoms or ions, and
the collision elastic and the collision is elastic. Elastic collision means carry of electron and p of electron before collision and after collision remains fixed. Before collision and after collision remains fixed. इसका मतलब ये है मोमेंटम का जब कब होगा, जब मास और वेलोसिटी कंजर्व होगा, तो देयर इज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एटम से कोलाइड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उसका मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट एंड मास शुड बी कांस्टेंट. मास कांस्टेंट है, दैट इज 9.11 × 10⁻31. so for momentum to be constant the velocity of colliding free electron should be constant. क्लियर. इसका मतलब ये कि अगर कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन हो रहा है, मान लो कि एटम गया, एक एटम गया और एक इलेक्ट्रॉन गया, एटम से कोलाइड किया, तो ड्यूरिंग कोलिजन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंजिंग, यानी कि जिस वेलोसिटी से इससे कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी क्या करेगा, वो फिर बाउंस बैक करेगा या उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, तुरंत मोशन करेगा. यानी कि मान लो यहां पर गया और कोलाइड किया, अब फिर तुरंत उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा या कहीं चला जाएगा. मींस देयर नो एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम. ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया एटम को वेलोसिटी दे करके, मान लो कि मार्बल बॉल यहां है और वहां है, तो ये वाला कोलाइड करेगा तो इसी वेलोसिटी पे चले जाएंगे ना, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड कर रहा है. सो देयर इज ओनली कोलिजन एंड कोलिजन इलास्टिक, मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी सेम रह रहा है और मोमेंटम भी सेम रह रहा है. इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज नाइदर लूजिंग एनर्जी नॉट वेलोसिटी. सो कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक, एंड दिस कोलिजन इलास्टिक ओनली व्हेन इफ देयर इज नो एनी बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा जब बैटरी लगा दोगे. आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट. ये कब होगा, जब तुमने बैटरी नहीं लगाया, कंडक्टर इज नथिंग, कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद एनी टाइप ऑफ बैटरी, एनी टाइप ऑफ बैटरी. कीप दिस इन माइंड. क्लियर. बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो कोलिजन कुछ और होगा, इलास्टिक नहीं होगा. आई बात समझ. इसका जस्टिफिकेशन ये भी है कि मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, इसका मतलब क्या होगा, मान लो मान लो इसको बार बार पंच मारो, क्या होगा, ये थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा. किसी चीज को बार बार पंच मारो तो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा. अब क्या है कि एक कंडक्टर ओवर हियर and you know there are large number of free electrons inside the conductor and they are regularly colliding with atom. तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी, मान लो ये डस्टर है, ये कंडक्टर मान लो इसको, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो एटम से कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करते हैं और अगर एनर्जी लूज करते तो एनर्जी किसको मिलता, एटम को मिलता. और एटम की एनर्जी लूज करता तो देन सारे एटम, ऑल एटम विल गेट सम एनर्जी ना, और एटम्स आर इनसाइड द बल्क में मटेरियल में, यानी ये मटेरियल ही एटम से बना है और एटम की एनर्जी मिल रहा है. इसका मतलब एटम का टेंपरेचर क्या होगा, बढ़ेगा. तो ये पूरे सिस्टम का टेंपरेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. इसका मतलब कहीं भी मेटल है तो धीरे धीरे हीटअप हो जाता ना, उसका टेंपरेचर बढ़ता है, लेकिन मिलता है क्या, ऐसा प्रूफ कभी होता है क्या. मींस देयर इज ए कोलिजन, ऑलवेज दे आर कोलाइडिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कोलाइडिंग विद द एटम, बट दे आर कोलिजन इलास्टिक, दे आर नॉट लूजिंग देयर एनर्जी. इसलिए टेंपरेचर जो आयरन का, मेटल का, कंडक्टर का हमेशा फिक्स रहता है. कोलिजन हो रहा है लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन है. नहीं तो कोलिजन होते समय देखते हो, अगर लोहार जैसा मारता है हथौड़ा तो देखते हो गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी वो लूज कर रहा है. लेकिन यहाँ कोलिजन का इलास्टिक के इलेक्ट्रॉन नॉट लूजिंग एनी एनर्जी. आगे बात समझ. तो ये बाबू, तो ये हो गया सारा एक्सप्लेनेशन व्हेन देयर इज नो एनी बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. नाउ विल डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ यू आर कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. तो जल्दी. तो क्वेश्चन ये बाबू, धीरे so this is a conductor. And electrons are in random motion. Clear? So electrons have random motion. Electrons have random motion means they have energy and which is 1/2 mgis prime. And अगर ith इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, ith इलेक्ट्रॉन की
ith electrons have this much of energy. So from where it is getting energy? From where? ये टर्म तो कुछ नहीं कर रहा है इसके साथ। ये एनर्जी को मिल कहाँ रहा है? 1/mv स्क्वायर मिल रहा है ना उसकी एनर्जी। and the electron is moving this much of energy 1/mv स्क्वायर। एनर्जी आ कहाँ से रहा है? कहाँ से आ रहा है एनर्जी? बताओ। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दे आर मूविंग एंड दे हैव एनर्जी। कहीं से एनर्जी आ रहा होगा या गॉड ने बनाया तो दे दिया एनर्जी उसको। हाँ, टेल मी आंसर। This energy due to thermal, this is the thermal energy. You are giving temperature, your thermal energy converted to kinetic energy of electron, means electrons are getting energy from temperature. If you are increasing the temperature, thermal velocity of electron will increase. Is that okay? So now consider, now we connected. So if there is any battery connected to the end of the conductor, motion of the electrons are due to thermal energy, due to temperature. Here, so if there is a conductor, and now let us connect this conductor with the battery. So this one is at high potential, and this is at low. So this one is at high potential, this one is at low potential. So there is electric field developed in that conductor, and direction of electric field is the electric field. Electric field clear in the conductor, and direction will be plus to minus. So this is the direction of electric. Clear, and there are large number of free electrons. And electrons are charged particles. And also mass. So mass of electron is 9.11 into 10 to the power minus 31. And charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear case. And if electrons are charged particles, they have mass, they have charge, and they are in the electric field. So if force will act on the electron, and force will be opposite to the direction of electron. Electric field. Means electric field अगर इधर तो force किधर लगेगा बाबू? इधर लगेगा. Means if there is electron, तो इसके पास एक तो बाबू इनिशियल वेलोसिटी है vi, ith इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसके पास एक vi वेलोसिटी है which is रैंडम वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी vi इलेक्ट्रॉन के पास एक vi है which is the initial velocity or random velocity, and this is due to temperature, and also if you are applying a potential difference, there is some acceleration acting on the electron ना, यानी this electron अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा, वो मान लो ai होगा, वो कितना होगा? a फोर्स कितना होगा? पहले fi इक्वल टू e into e ना, चार्ज into but डायरेक्शन will be opposite to the velocity ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो किधर होगा? फोर्स इधर होगा, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा ai इक्वल टू माइनस ऑफ ap अपॉन fi अपॉन e ना, क्या करो m ना, and which is equal to minus of e upon m. So this is the यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन will अपोजिट टू ईच अदर ना, हम यहाँ i नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो i इसलिए लगाएगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट रैंडम वेलोसिटी, लेकिन अगर फोर्स की बात करोगे तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो उसका मास और चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, यहाँ i नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत i नहीं लगाएंगे। So this is acceleration acting on all electrons, and different electrons will have different random velocity. So you know there is a relation, if u is the initial velocity and a is the acceleration, then final velocity is equal to u plus at in vector form. So vi is the initial velocity of the electron, which is random velocity, and that is due to thermal motion, and a is the acceleration. तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करोगे
velocity of first electron, velocity of first electron is equal to final velocity is equal to v1. देखो कहने उसको इनिशियल को मैंने ऐसा बनाया और फाइनल का ऐसा v1 इक्वल टू v1 प्लस माइनस या प्लस मान लो प्लस 80 लिखोगे ना वेक्टर फॉर्म में 80 तो लिखो ऐसे लिखोगे ना। सिमिलरली सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 इक्वल टू v2 प्लस a t। क्लियर। अब देखो यहाँ ये t क्या है, ये t को क्या लोगे, t क्या लोगे ये सोचना है पहले। तो यहाँ मान लो हम t1 यूज करते हैं या t2 यूज करते हैं। अब t को सोचना क्या, मान लो बाबू दिस इज योर कंडक्टर, connect this is battery and there is electron. So these electrons have velocity vi, initial velocity and also acceleration. So plus at करोगे ना। अब ये t क्या लोगे, एक्सेलरेशन कब कौन सा टाइम होगा, कब तक एक्सेलरेशन होगा, कब तक एक्सेलरेशन होगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है, क्लियर, इधर जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है। तो मान लो क्या है एटम है, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाकर क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कब तक होगा, जब तक वो कोलाइड नहीं करता। यहाँ से चला और यहाँ कोलाइड करेगा, इसके बीच में मोशन जब एक्सेलरेट होगा, फिर कोलिजन के बाद क्या होगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और फिर चलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो एक कोलिजन हुआ, अब फिर खड़ा होकर फिर चलना शुरू किया, अब फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो बीच में पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये टाइम क्या है बाबू, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग कोलिजन टाइम होगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब क्या ये जो इलेक्ट्रॉन चला तो यहाँ पर इसके लिए इसके पास में यहाँ पर एटम है और इसके पास में यहाँ एटम है, तो ये जल्दी कोलाइड करेगा। ये क्या होगा बाबू, लेट से कोलाइड करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक यहाँ एटम है, इसको भी तो अलग टाइम लगेगा कोलिजन में ना। मीन्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कोलिजन टाइम विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर T1 एंड T2 मीन्स T1 T2 डॉट डॉट Tn आर time between two successive क्या लिखते हो, कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर। सिमिलरली V3 इक्वल टू ये V3 प्लस a वेक्टर T3। So for ith electron equal to Vi plus ATI। कोई दिक्कत। So these are the Vi is the final velocity of ith electron after time t, V3 is the final velocity of electron after time t3, V2 is the final velocity of electron after time t2। clear। So different electrons will have different velocity। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फिफ्थ का, different electrons will have different velocity। then एवरेज वेलोसिटी ऑफ यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। तो मैं पूछ रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताओ तो क्या करोगे, एवरेज ही लोगे ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो इसको लिखो पहले, लिखो फिर आगे बताओ, बोर्ड भरा हुआ। So E is electric field. So V average is equal to minus of EE by M into tau. Tau is the relaxation time, and this is the time between two collision, and this is a constant, and constant for a given temperature and constant for a given material. So if you are changing temperature, your tau is changed. Clear? So V average equal to minus of EE by M into tau. Clear? Means your V average depends upon
electric field and so depends upon tau. कोई दिक्कत? And also direction of the average velocity यानी कि v average will be opposite to electric field ना, because there is a minus sign ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो v एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा? v एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा ना। एंड दिस v एवरेज इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इसको हम vd से डिनोट करेंगे। तो vd is equal to minus of e by m into tau. So this is the expression for drift velocity, and drift velocity is always opposite to the electric field। यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? इधर होगा। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन किधर मोशन में आएगा? इधर मोशन में आएगा। करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो करंट भी क्या होगा? इधर होगा, बिकॉज़ यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of motion of electron। क्लियर? So vd is, so but if your electric field is constant, is fixed and material and temperature is fixed, then velocity of electron in the conductor will be fixed। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है यहाँ का और मटेरियल और टेम्परेचर फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? फिक्स होगा। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्टर विद ए fixed velocity if your temperature is fixed and electric field is fixed, and that constant velocity is called the drift velocity। क्लियर? देखो कहाँ से कहाँ, पहले जब कोई चार्ज नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो रैंडम डायरेक्शन था, रैंडम मोशन था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो गया? फिक्स हो गया, पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? एंड दिस कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड मींस व्हेन E T electric field and temperature are fixed, then electrons move in the conductor with constant speed called drift velocity, called that is vd equal to minus of e by m into tau। So दिक्कत? Clear? So this is our topic drift velocity। In the next class we will discuss origin of resistance। यही यूज करके हम आगे करेंगे। क्लियर? So bye।